Hello everyone. So today we are going to discuss a few questions about the topic potentiometer. These questions have been frequently asked in the board's exam. So let's come to them. The first question says, of which material a potentiometer or meter bridge wire is generally made of and why? तो हमारी जो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज वायर होती है वो किसकी बनी होती है? मैंने बताया था ये किसकी बनी होती है, कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेट. बट व्हाई दे आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट? They are alloys. First, they have high resistivity. अगर resistivity ज़्यादा, since they are resistance wires, so they should have higher resistivity than the normal wires that we use in connecting the circuit. जो copper wires होते हैं उनसे ज़्यादा resistivity होनी चाहिए, तो constant और magnet की high resistivity है. Second, they have alpha, small positive value of alpha. What is this alpha? This is temperature coefficient of resistance. कि थोड़ा सा temperature बढ़ाने पर अगर resistance बहुत ज़्यादा change हो जाती है, it means it is not a good resistance wire because it is going to affect the results. हमारे results affect हो जाएंगे. Even with a substantial change in temperature, there should be minimal change in resistance. This implies that it has small value of small positive values of temperature coefficient of resistance. Now the second question says, why should potentiometer wire be of uniform cross section and composition? हमारी जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और कॉम्पोजिशन की क्यों होनी चाहिए? So the answer is, a wire of uniform cross section and composition has uniform resistance per unit length. अगर उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है या कॉम्पोजिशन है, मान लो वो दो तीन मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, कहीं पर किसी मटेरियल से बनी है, कहीं पर किसी मटेरियल से बनी है, तो हम जो अपना पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल है that V is proportional to length, that is potential drop across the wire is directly proportional to the length that we are considering, will not apply. क्योंकि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हर एक लेंथ, हर एक जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर की, छोटी छोटी लेंथ है उसके क्रॉस वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेगमेंट. अब वो सेगमेंट किस मटेरियल का बना है, उसका क्या क्रॉस सेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो हम इसमें अपना पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल नहीं लगा सकते. So that's why we use a potentiometer wire of uniform cross section and composition. Now let's come to the next question. Question number 3 says, why do we prefer a potentiometer with a longer wire? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे पोटेंशियोमीटर की वायर लंबी हो? तभी तो हम 10 मीटर की वायर लेते हैं पोटेंशियोमीटर में. बट 10 मीटर की जरूरत क्या होती है? मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. अगर ज्यादा से ज्यादा लेंथ के अक्रॉस कम से कम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब हम उसमें पोटेंशियल ड्रॉप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. तो इसका मतलब अगर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, इन दैट केस सेंसिटिविटी इज मोर. सेंसिटिविटी ऑफ potentiometer is inversely proportional to potential gradient. अगर potential gradient कम होगा तो sensitivity ज़्यादा होगी. So longer bridge wire will have small potential gradient and hence it will be more sensitive. So it is preferred. So this will be the answer. Now the next question says, what is meant by the sensitivity of potentiometer? Potentiometer की sensitivity क्या होती है? देखो, हम बोलते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव, वो ज्यादा सेंसिटिव है इफ देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन सेज इफ इट कैन मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस. वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर वो मेजर कर सकती है, इसका मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है. इट कैन बी कंपेयर्ड वेरी मच टू द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ही एक्यूरेटली वो मेजर करेगा. तो यहाँ पर इसका जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही एक्यूरेटली मेजर करेगा. तो इसका मतलब it can measure the very small potential differences. Then we can say that potentiometer is more sensitive. The second reason for this potentiometer being more sensitive is it shows a large change in balancing length for a small change in
पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। जब हम पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, वी आर यूजिंग V इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर हमारा V हल्का सा भी चेंज होता है, स्लाइट चेंज होता है, तो हमारी लेंथ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है अगर, तो इसका मतलब हमारा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। इट मींस it has the capability to measure even very small potential differences. So the potentiometer is said to be more sensitive अगर वो बहुत छोटी वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है, और हल्का सा बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा भी चेंज होता है, then balancing length changes a lot. In that case, it is more sensitive. Let's come to fifth question now. How can a potentiometer be made more sensitive? हम पोटेंशियोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं? 3 तरीके से हम बना सकते हैं. These are the 3 ways. First is by decreasing current in the main circuit. Second, by decreasing potential gradient or increasing the length of the wire, potentiometer wire. And third, by increasing resistance put in series with potentiometer. अभी कैसे हो रहा है देखते हैं. अगर जो मेन सर्किट है, ये जो मेन सर्किट है, इसमें मैं करंट की वैल्यू कम कर दूं, तो ये जो लेट अस सपोज इस वायर की रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस है, और लेट मी टेक इट एज R डैश. तो अगर मैं करंट की वैल्यू कम कर दूं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा. नाउ द पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीजेस, देन द पोटेंशियोमीटर मेरा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है. सो दिस वाज द फर्स्ट वे. द सेकंड वे था हमारा डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट और इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर. अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दें, कैसे करेंगे? K इज इक्वल टू V बाय L. लेंथ अगर हम बढ़ा देते हैं वायर की, 5 मीटर की जगह मान लो मैंने 10 मीटर ले दी, तो इसका मतलब मेरे K की वैल्यू कम हो जाती है, और K की वैल्यू अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा कम हो गया है, इट मीन्स द पोटेंशियोमीटर इज नाउ मोर सेंसिटिव. एंड द थर्ड वे बाय विच वी कैन डू इट इज इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस पुट इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर वायर. देखो, जब मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस R प्लस R डैश जो थी पहले, ये बढ़ गई. अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. अगेन इसके अक्रॉस R डैश के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, एंड जो इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होते ही इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. सो दीज आर द 3 वेज. फर्स्ट, बाय रिड्यूसिंग द करंट जो बैटरी सप्लाई कर रही है. सेकेंड, बाय increasing the length of potentiometer wire. And third, by increasing this resistance. Let's look at sixth question. The EMF of the driving cell used in the main circuit of potentiometer should be more than the potential difference to be measured. Why? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइमरी सर्किट में जो ड्राइविंग मेन सर्किट है उसके अंदर जो सेल लगाते हैं उसकी EMF ज़्यादा होनी चाहिए हमारी उसकी दूसरे सेल की EMF से जिसकी हम EMF मेजर कर रहे हैं, या फिर हम जो पोटेंशियल डिफरेंसेस वायर पे मेजर कर रहे हैं उससे जो ड्राइविंग सेल की EMF ज़्यादा होनी चाहिए. वाई? अगर नहीं है, इसका मतलब हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा. वी वोंट बी एबल टू गेट अ नल पॉइंट, और नल पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम अपनी दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट, कि हम नल पॉइंट ऑब्टेन करते हैं और नल पॉइंट से V इज प्रोपोर्शनल टू L करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. सो इफ इट इज नॉट सो, द पोटेंशियल द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर. जो नल पॉइंट है वो हमें नहीं मिलेगा. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the variation of potential difference V with length in case of two potentiometer wires P and Q is shown in the given graph below. ग्राफ में आपको दे रखा है कि P और Q दो पोटेंशियोमीटर वायर्स हैं और उनका पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन लेंथ के साथ हमें दे रखा है. वी नीड टू फाइंड फर्स्ट पार्ट, विच पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव. इसमें सेंसिटिव कौन सा है? सिंपल है, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट. One having lesser potential gradient will be more sensitive. So the one having higher value of potential gradient will have less sensitivity, and the one having lower value of potential gradient will have more sensitivity.
तो यहाँ पर ग्राफ में पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बाय स्लोप। किसकी स्लोप कम है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम होगा, सिंस स्लोप इज y एक्सिस अपॉन x एक्सिस v by l, so this is slope. तो वन विद लेसर स्लोप इज q की स्लोप कम है, तो इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, sensitivity for q is more. So the answer is the potentiometer wire q is more sensitive. अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज वायर विल यू प्रेफर फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। दो प्राइमरी जो दो सेल्स हैं हमारे पास, ये सेकेंडरी सेल्स बेसिकली, उन दो सेल्स हैं, उनकी ईएमएफ कंपेयर करने के लिए मैं कौन सा पोटेंशियोमीटर यूज करूंगी, आई विल डेफिनेटली यूज द पोटेंशियोमीटर हैविंग मोर सेंसिटिविटी, और ज्यादा सेंसिटिव कौन है, Q, so I will use the potentiometer Q. So this is the end of the video. Hope the questions are clear now. We'll discuss some more questions in the next video. So that's all for right now. Have a good day.